محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے بچو، یقیناً جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں پہنچانے والا ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ تلبیہ کی گونج کے ساتھ ریاست سے عازمین حج کی روانگی کے سلسلے کا ہوا آغاز۔ حیدرآباد میں حج کمیٹی چیئرمین، ریاستی اقلیتی کمیشن چیئرمین طارق انصاری و وزیر داخلہ محمود علی و دیگر نے دکھائی ہری جھنڈی۔ پروجیکٹ کی تعمیر کے سبب ریاست میں آبپاشی کے مسائل حل کرنے والے صرف KCR۔ وانی منڈل میں تلنگانہ یوم تاسیس کے جشن کے حصے کے طور پر منعقدہ یوم آبپاشی تقریب سے ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچھرام سرینواس ریڈی۔ MP اروند کو دم ہے تو اس بار انتخابات میں ان کی بالمقابل انتخابات میں حصہ لے۔ PUC کمیٹی چیئرمین و آرمور MLA جیون ریڈی، ان کی قیادت میں 500 سے زیادہ افراد نے کی BRS میں شمولیت حاصل۔ نظام آباد سے عازمین حج کے پہلے قافلے کی ہوئی آج حیدرآباد کے لیے روانگی۔ خصوصی دعاؤں کے ساتھ کیا گیا سفر کا آغاز۔ جماعت اسلامی نظام آباد کی جانب سے زیر تعمیر الشفا ہاسپٹل کا متحدہ ضلع MLC کے کویتا و MLA بیگالا گنیش گپتا نے کیا دورہ۔ وہ فنڈز کی فراہمی و ہاسپٹل کے لیے آلات کی فراہمی کا دیا تیقن۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیلی جانب۔ جماعت اسلامی کی جانب سے زیر تعمیر الشفا دواخانے کا متحدہ ضلع MLC کے کویتا و MLA بیگالا گنیش گپتا نے لیا جائزہ۔ وہ فنڈز کی فراہمی کا کیا اعلان۔ جماعت اسلامی ہند کے زیر اہتمام الشفا ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے رحمت پورہ مالاپلی نظام آباد پر الشفا ہاسپٹل نزد مسجد الفلاح کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ الشفا ہاسپٹل کے تعمیری کام مکمل کر لیے گئے۔ آج MLC نظام آباد کے کویتا اور رکن اسمبلی نظام آباد اربن بیگالا گنیش گپتا نے الشفا دواخانہ پہنچ کر تعمیراتی و طبی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ MLC کے کویتا نے الشفا دواخانے کے لیے تمام عصری مشین اور سامان کو اپنی جانب سے فراہم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے جماعت اسلامی ہند کی جانب سے عوام کی خدمت کے لیے انجام دیے جانے والے اقدام کو قابل تحسین بتایا۔ انہوں نے کہا کہ علیحدہ تلنگانہ تحریک میں بھی جماعت اسلامی ہند نے سب سے پہلے تحریک کی تائید کی۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ اور BRS پارٹی کے قائدین جماعت اسلامی کی علیحدہ تلنگانہ تحریک کے لیے تائید کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ الشفا دواخانے کے قیام سے آس پاس کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے غریب مریضوں کو عصری طبی علاج کی سہولت حاصل ہوگی۔ MLC کے کویتا نے الشفا دواخانے کے لیے نہ صرف عصری مشین و سامان فراہم کرنے کا اعلان کیا بلکہ جب بھی دواخانے کے لیے کوئی ضرورت درکار ہوگی ہمیشہ تعاون کرنے کا بھی تیقن دیا۔ رکن اسمبلی نظام آباد اربن بیگالا گنیش گپتا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نظام آباد اربن میں تعلیم، طب، روزگار اور تمام بنیادی و عصری سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتی طلباء کو مفت تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے نظام آباد شہر میں 7 اقلیتی اقامتی اسکولز و کالج تعمیر و قائم کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ IT ہب کا عنقریب افتتاح عمل میں آئے گا جس سے ہزاروں نوجوانوں کو روزگار حاصل ہوگا۔ رکن اسمبلی بیگالا گنیش گپتا نے کہا کہ BRS پارٹی سیکولر جماعت جو تمام طبقات کو ساتھ لے کر ریاست اور عوام کی ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ احمد عبدالعظیم امیر جماعت اسلامی ہند ضلع نظام آباد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خالص عوام کی خدمت اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے الشفا دواخانے کی تعمیر عمل میں لائی گئی ہے۔ الشفا دواخانے میں تمام عصری طبی سہولتیں مفت فراہم کی جائے گی۔ تلنگانہ ریڈکو چیئرمین SC علیم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ MLC کے کویتا اور رکن اسمبلی نظام آباد اربن بیگالا گنیش گپتا کی جانب سے اقلیتوں کی ترقی کے لیے کی جا رہے اقدامات پر اظہار تشکر کیا۔ اس تقریب میں BRS پارٹی کارپوریٹرز محمد عبدالقدوس ببلو خان، عمران شہزاد، صدر ٹاؤن مائنارٹی سیل BRS پارٹی میر مجاز علی، محمد فیاض الدین کے علاوہ ناظم جماعت اسلامی خواجہ نصیر الدین، MPJ قائدین ظہیر الدین، ڈاکٹر سجاد، شیخ حسین، سید انور و دیگر موجود تھے۔ ایک میرا سجیشن تھا اس میں ہاسپٹل میں
जिस दिन हम लोग मिल के बात करें, इक्विपमेंट का पूरा इंतज़ाम और इक्विपमेंट का जिम्मेदारी मैं ले लेती हूँ। तो जो भी बाकी आपको ये लोगों से मदद मिलेगा वो आपको मंथली मेंटेनेंस के लिए फिर बहुत काम आएगा, क्योंकि मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ, मुझे मालूम है जो एक बार खोलना इजी हो जाता है, मंथली मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल होता है। और नेक काम जब शुरू करते उसको रोकना नहीं चाहिए। किसी तरीके का रुकावट जब आता है तो लोगों का थोड़ा दिल मायूस हो जाता है, तो रोकना नहीं चाहिए। तो अगर हम शुरू कर रहे हैं किसी भी हालत में इसको चलाते ही रहना है, और उसके लिए हम आपके साथ हैं। जब भी कभी कुछ भी प्रॉब्लम आता है, अगर कभी कुछ कम पड़ जाता है चलाने में, तो याद रखिए आपके बहन हैं, सगे बहन आपके साथ हैं। लेकिन जमात रहने के बावजूद हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, कोई पूछे बिना अपने आप वो जिम्मेदारी लेके जो आगे आए, मैं आप लोगों को तारीफ़ की काबिल है, तारीफ़ भी करते हैं, शुक्रिया अदा भी करते हैं। और जैसे आपने बिल्डिंग बनाया, थोड़ा दिन पहले मुझे नवीद और लोग भी आए थे और बोले कि ऐसा जमात इस्लामी वाले हॉस्पिटल बनाए और थोड़ा इक्विपमेंट की ज़रूरत है, तो आपकी मदद चाहिए। तो हम सोच रहे थे कि भाई कहाँ से हम मदद करेंगे, किसकी तरफ से करेंगे। थोड़ा हमारे लेवल जो है छोटा है, कविता मैडम का जो लेवल है बहुत बड़ा लेवल है। मैं नवीद को मशवरा भी किया और जैसे मैडम से पूछे और CSR के तरफ से मैडम इसका सैंक्शन करवाए। उर्स शरीफ हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह कोट गली का सालाना उर्स शरीफ में कांग्रेस हरकियाती कायद डी संजय ने की शिरकत व पेश की चादर मुबारक। निजामाबाद के हरकियाती कांग्रेस कायद व शाह निजामाबाद के पहले बल्दी मेयर डी संजय ने अपने रफ़ा के हमरा शाह निजामाबाद के इलाके कोट गली में मौजूद दरगाह हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ में हाजिरी दी और चादर मुबारक पेश की। इस मौके पर सदर दरगाह कमेटी मोहम्मद साबिर अली ने इनकी गुलपोशी की। बातज़ा इन्होंने दरगाह शरीफ पर खुसूसी दुआएं करते हुए हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की मिसाल कायम की। इस मौके पर इनके हमरा अब्दुल क़य्यूम, मोहम्मद वली, मीरान अली, मुबशिर, जाफर, अत्तर अली, अकरम, अफ़ान व दीगर मौजूद थे। आज जो है हमारे निज़ामाबाद में कोटा गली में अहमद हुसैनी बाबा के उर्स में, और ये दरगाह पे आना हुआ, ये उर्स में हमारे जो है हमारे साथी पुराने दोस्त साबिर अली साहब के सदारत में जो बहुत सालों से ये उर्स बनते आया है, यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स उनके सदारत में हुए, बहुत अच्छे तरीके से सारे इंतज़ाम किए गए हैं। मैं अपने तहे दिल से ये कमेटी वालों को, स्पेशली जो है हमारे साबिर अली साहब को और उनके टीम मेंबर्स को, सबको बधाई देता हूँ। और सबको, जितने भी यहाँ पे लेडीज़ जेंट्स सब जो आए, उन सबको मैं अपने तहे दिल से। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की क़यादत में रवा साल आज़मीन हज के पहले काफ़िले की रवानगी से क़ब्ल की गई खुसूसी दुआएं। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की क़यादत में आज आज़मीन हज का पहला काफ़िला लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल से तलबिया की गूंज के साथ हैदराबाद के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर सदर निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी आबिद खासमी, मोहतमिद आला व साबिक़ा रियासती रुकन हज कमेटी अलहाज हबीब अहमद साहब, अब्दुल अजीम साहब, मौलाना हैदर खासमी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर रियाज अहमद व दीगर ने इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उलमा कराम की जानिब से खुसूसी दुआएं की गई और ख़ास तौर पर वतन अजीज के लिए दुआओं की अपील की। इस मौके पर तमाम आज़मीन हज को इनके अफराद खानदान ने नमदीदा होते हुए रवाना किया। इस मौके पर खादिम हज अब्दुल हई राहिल, डॉक्टर आसिम, एम कलीम, मोहम्मद अफरोज अहमद, अबूद बिन सईद, अखिलुर रहमान, मजहर सैयद मुबशिर, फरहान, सलमान, अकरम, कैफ, काशिफ, अब्दुल रहमान व दीगर मौजूद थे।
हज की तरबियत के लिए और इनके हज के इंतजाम के लिए 8 महीने से ऐ अल्लाह ये मेहनत कर रही है। ऐ इलाही, ये जो बच्चा आपके दरबार में पहुंच रहे हैं, ऐ अल्लाह इनके आने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इनके हज को हज मकबूल बना दे। ऐ अल्लाह इनके हज को हज मकबूल बना दे। आज़मीन हज मुल्क व रियासत तेलंगाना की तरक्की व फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी के लिए खुसूसी दुआ करें। पहले काफ़िले की रवानगी पर तारिक अंसारी, चेयरमैन रियासती अखिलती कमीशन का खिताब। आज़मीन हज मुल्क व रियासत तेलंगाना की तरक्की व फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी के लिए खुसूसी दुआएं करें। इन ख़यालात का इजहार तारिक अंसारी, सदर नशीन अखिलती कमीशन ने आज शमशाबाद एयरपोर्ट से आज़मीन हज के पहले काफ़िले की रवानगी के मौके पर मुनाक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए किया। तारिक अंसारी ने आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि वो खुशनसीब अफराद है जो इस्लाम के अहम रुकन हज की अदायगी के लिए मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सरपरस्ती में रियासती हज कमेटी हर साल आज़मीन हज के लिए मौसर इक़दामात रूब अमल में लाते हुए इनकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तारिक अंसारी ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अखिलतों की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार स्कीमात का आगाज़ किया है। इन्होंने आज़मीन से कहा कि वो मनासिक हज के तमाम अराकीन को इत्मीनान क़ल्ब के साथ अदा करे। आज़मीन हज से दरख्वास्त की कि इबादत में मशगूल रहे और सारी दुनिया में अमन व सलामती के लिए अल्लाह के हुजूर खुसूसी दुआएं मांगे। इस मौके पर आज़मीन हज को रुखसत करने के लिए रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, AK खान, मुशीर बराए अखिलती बहबूद, सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम कुरैशी, बी शफीउल्लाह, डायरेक्टर कमिश्नरेट अखिलती बहबूद व एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी इम्तियाज इसाक, सदर नशीन रियासती अखिलती मालियती कॉर्पोरेशन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, सदर नशीन तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेख कुल हदीस जामा निजामिया, DCP सेंट्रल जोन M वेंकटेश्वरलू, ACP आबिद पुलिस स्टेशन के पूर्णा चंदर, अराकीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी सैयद गुलाम अहमद हुसैन, शेख हमीद पटेल, जाफर खान, सैयद निजामुद्दीन, इरफानुल हक, असमा सुल्ताना के अलावा इरफान शरीफ, AEO, मौजूदीन शहर, अहदेदारों, CISF स्टाफ और GMR स्टाफ और STS स्टाफ और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की तेलंगाना हज सोसाइटी की जानिब से जो जा रहे हैं सभी को सलाम, सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ख़ास तौर पर आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ इस अहम मौके पर मुक़द्दस के सफ़र में आप लोग जो है हम तमाम तेलंगाना की रियासत के लिए दुआ के लिए ख़ास तौर पर जो है हमारे इस रियासत के हकील अजीज वज़ीर आला जनाब KCR साहब के लिए भी जो इतनी कोशिशें, इतनी काविशों के बाद तमाम की किसी हाकिम हज को जो है कहीं भी किसी किस्म की तकलीफ ना हो, तो हम इससे जो है वहाँ बैठ कर जो है तमाम की जो है आप लोगों की निगरानी कर रहे हैं। तो मैं आज फिर एक बार आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो है तमाम रियासत के लिए दुआ करिए, हमारे अमन अमान के लिए दुआ करिए, वज़ीर आला जनाब KCR साहब के लिए दुआ करिए और खास तौर पर यहाँ रियासत तशरीफ फरमा जितने भी लोग हैं, हमारे AK खान साहब है जो बराए मुशीर और तेलंगाना हुकूमत के जिम्मेदार हैं, शफीउल्लाह साहब है और हमारी हज कमेटी के हाजी अजीज चेयरमैन जनाब सलीम साहब भी है और खास तौर पर जो इतने जो है खादिम हुज्जा जो काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल कितने भी लोग जो आप लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं, सबके लिए दुआ करिए। सबके लिए मैं कमीशन की जानिब से सबका जो है तहे दिल से मैं जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी कोशिशें यकीनन हाज़िर हज की जो है चेहरे पर मुस्कान का सबब बनी हुई है। आप इनकी खिदमत करें। मजलिस मुखालिफिन की जानिब से मुझको बदनाम करने की कोशिश, दावा की जाने वाली अराजी को महकमे बल्दी ने 1950 में ही रकम अदा करते हुए हासिल किया। अदालत की जानिब से जिसकी तस्दीक भी की जा चुकी है और तमाम अफराद के खिलाफ महकमे पुलिस की जानिब से जांच का आगाज भी किया जाएगा। भैंसा सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद जाबिर अहमद का सहाफती बयान। मोहम्मद जाबिर अहमद सदर नशीन बल्दिया भैंसे ने म्यूनसिपल चैम्बर में एक पुरजुम प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए भैंसा बल्दिया म्यूनसिपल चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद पर लगाए इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि भैंसा बस स्टैंड रोड पर एक अराजी जिसका सर्वे नंबर 330/2 जो 4 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसको बल्दिया भैंसा ने 1950 में 342 रुपये 12 पैसे से पट्टा जमीन को खरीदा था, जिसकी सिंध बल्दिया के पास बतौर सबूत मौजूद है, जिसमें बल्दिया का ई सेवा और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मौजूद है। इन्होंने कहा कि
अराजी का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सदर नशीन बल्दी गंगाधर के दौर में तामीर किया गया। इसी अराजी के अगबी हिस्से में मखलूआ अराजी पर हमारे दौर इख्तिदार में ई सेवा की तामीर की गई। अब जबकि बाकी बल्दी की अराजी पर जिले कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक एससी कॉम्प्लेक्स तामीर किया जा रहा है, जिसका बजट रुकन असम्बली मदुल ने खुसूसी तौर पर मंजूर करवाया। अब इस कॉम्प्लेक्स की तामीर बल्दी की निगरानी में की जा रही है, लेकिन कुछ मजलिस मुखालिफिन ने गरीब खवातीन का सहारा लेकर यौमिया उजरत पर बिठाकर मोहम्मद जाबिर अहमद पर ये अराजी कब्जा करने का इल्जाम लगाया जा रहा है और हर 4 दिन में एक नया तमाशा किया जा रहा है, जो सरासर बेबुनियाद है, क्योंकि इनकी जानिब से अदालत में दाखिल की गई दरखास्तों को अदालत ने 11 बार मुस्तरद कर दिया और भैंसा म्यूनसिपैलिटी के हक में फैसला दिया। इन्होंने मस्जिद कहा कि जो लोग मुझ पर कब्जे का इल्जाम लगा रहे हैं वो सरासर झूठ पर मबनी है, क्योंकि इस अराजी पर कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक एससी कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाने वाला है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस पर कब्जा किस तरह हुआ। ये लोग इस अराजी को कभी वक्फ की कहते हैं तो कभी पट्टा जमीन कहते हैं। इन्होंने शहर के अवाम से कहा कि मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, अगर वाक़तन ये अराजी किसी भी मुस्लिम की हो तो मैं क्यों इस जमीन को हुकूमत के हवाले करूँगा। ये महज जाबिर अहमद को बदनाम करने की गर्ज से एक मुकामी यूट्यूबर का इस्तेमाल करते हुए साजिश की जा रही है, जबकि ये खुद यूट्यूबर कई एक गैर कानूनी धांधलियों में मुलविस है, जिसके लिए हमने कानूनी कार्रवाई का अमलन आगाज कर दिया है। बातज़ा मोहम्मद जाबिर अहमद ने कहा कि मुकामी पुलिस को हमने इस बात की इत्तला दी और बुध की सुबह से पुलिस और बल्दी कमिश्नर की निगरानी में एससी कॉम्प्लेक्स की तामीर की जा रही है। इन्होंने पुलिस के ताउन पर इजहार तशक्कुर की अपनी बात जारी रखते हुए बताया कि जो भी इस सरकारी काम में रुकावट बन रहे हैं, इन तमाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाउन सदर मजलिस रुकन बल्दी फैजुल्लाह खान, एडवोकेट इम्तियाजुल हक, कॉर्पोरेशन मेंबर बल्दी अब्दुल माजिद, नुमाइंदा कौंसलर भी मौजूद थे। तलबिया की गूंज में निज़ामाबाद के आज़मीन हज का पहला काफिला रवाना। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ने झंडा लहराकर रुखसत किया। मौलाना शेख इस्माइल आरिफी सदर ज़िले हज सोसाइटी निज़ामाबाद की दुआ पर आज शहर के निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल से आज़मीन हज का पहला काफिला जो रिजर्व कैटेगरी का था आज रवाना हुआ। हज सोसाइटी निज़ामाबाद के तमाम अराकिन व मुसलमानान ने दुआओं के साथ इस काफिले को रुखसत किया। वसीम अहमद खान ने सफ़र के दौरान अपनी सेहत का ख्याल रखने का मशवरा देते हुए कहा कि किसी किस्म की कोई भी परेशानी दरपेश हो तो फौरी मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारान से रब्ता करते रहें, इंशाअल्लाह रहनुमाई की जाएगी। इस मौके पर वसीम अहमद खान, खाजिन हाफिज मज़हर मोहम्मद सिद्दीक़, शेख अकरम, अब्दुल हमीद, इमरान शरीफ, अब्दुल बारी, मोहम्मद हामिद, सादुल्ला व दीगर खद्दाम ने शिरकत की। नेज़ ये खादिमीन हज सोसाइटी हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद तक खिदमत के लिए साथ रहेंगे ताकि हज हाउस में होने वाली तमाम तर कार्रवाइयों को बसहूलत अंजाम दिया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हज्जाज अकराम के सामान को भी बहिफाजत पहुंचाने का बेहतर से बेहतर बंदोबस्त किया गया। इस मौके पर निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल के मालिकीन ने भी खिदमत में हिस्सा लेते हुए दुआओं की ख्वाहिश की। जश्न तेलंगाना के मौके पर उर्दू सहाफ़ियों की खिदमात पर तहनीत से नवाजा जाए। मोहतरमा की कविता MLC से सदर ज़िले TUWJU निज़ामाबाद का मुतालबा। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन शाख निज़ामाबाद के सदर मिस्टर सैयद यासीन अली, एडिटर अनवार दक्कन ने आज MLC मोहतरमा के कविता से एक मुलाकात में जश्न तेलंगाना की 10 साला मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि रियासत तेलंगाना के क़याम का 10 साला जश्न पूरे तेलंगाना में जोश व खरोश से मनाया जा रहा है और इस मौके पर रियासत तेलंगाना की तरक्की को पेश किया जा रहा है, जिसका सहरा रियासत के चीफ मिनिस्टर KCR के सर जाता है। उर्दू ज़ुबान को रियासत तेलंगाना में दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया गया है। इस सिलसिले में निज़ामाबाद के सीनियर उर्दू सहाफ़ियों को इस यादगार जश्न के मौके पर अवार्ड और एजाज़ात से नवाजा जाए तो इनकी हिम्मत अफजाई होगी और ये एक यादगार इक़दाम होगा। मोहतरमा के कविता ने तयक़ुन दिया कि वो इस सिलसिले में ज़िले कलेक्टर को फौरी तौर पर मुतवज्जे करेंगे। BRS पार्टी के कायदीन व कारकुनान हमारी ताकत होने का शहर के एक फंक्शन हॉल में मुनाक़िदा BRS ख़ुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से MLC के कविता का खिताब।
शहर निज़ामाबाद के एक फंक्शन हॉल में मुनक़िदा BRS ख़ुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने शिरकत की। इस मौके पर MLC के कविता ने खिताब करते हुए कहा कि बाज़ सियासी पार्टी व कायदीन की जानिब से नारे लगाए जाते हैं मगर अवाम को सच्चाई से वाकिफ़ नहीं करते, जो कि काबिल मज़म्मत है। इसी तरह से CM KCR ने शहीद जवानों के अफराद ख़ानदान को मदद फराहम की है। असल में अगर कोई सच्चा मुहिब्बुल वतन है तो वो हमारे CM KCR है, जो कि गुज़िश्ता 5.5 साल दौर इक़्तिदार में रियासत में 65 लाख किसानों को 65,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली रियासत तेलंगाना होने का इजहार किया। सुबह से शाम तक KCR साहब हमेशा और हमेशा एक ही बात सोचते हैं, तेलंगाना के आवाम के लिए क्या नई चीज और करना है, तेलंगाना के आवाम के लिए क्या नया सहूलत और लेके आना है, किस तरीके से वजीफे को बढ़ाना है, किस तरफ से सहूलतों को बढ़ाना है, किस तरफ से तालीम के जो स्कूल्स बन रहे नए नए उसको कैसे बढ़ाना है। बस यही सोच रहता और कुछ नहीं रहता। ये गुलाबी कंडवा जो है सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के आवाम के लिए बनी है और तेलंगाना के आवाम के लिए ही काम करती है। और ये कैरी करना, ये कंडवा अपने गले में लेके फिर ना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम सबको साथ चलना है। करोड़ों एकड़ फसलों की काश्त के लिए पानी मिशन भगीरथ के तहत हर एक घर को पानी की फराहमी अमल में लाने वाली वाहिद रियासत तेलंगाना होने का ज़िले BRS सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी ने किया इजहार। यौम तासीस तेलंगाना अशरा तकारीब के तहत आलमर शहर के गुंडाला तालाब मिनी टैंक बॉन्ड के पास मुनाक़िदा यौम आपाशी तकारीब में ज़िले BRS सदर आलमर MLA जीवन रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक की टैगलाइन पानी फंड तकर्रुरात होने की याद दहानी करवाई और आज रियासत तेलंगाना आपाशी के मैदान में नई तारीख रकम की। कालेश्वरम प्रोजेक्ट दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम कालेश्वरम प्रोजेक्ट हैरत अंगेज होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आज तेलंगाना में कई करोड़ों एकड़ की जमीन है जहां 3 फसलें उगाई जाती है और आज गर्मा के मौसम में भी तालाब पानी से भरे हुए हैं, तो इसकी वजह मिशन काकतिया के जरिए आलमर हल्के में 220 तालाबों को बहाल किया गया है। इसी तरह से 9,000 एकड़ अराजी की काश्त के लिए पानी की सरबराही अमल में लाने वाले फतेहपुर चेपुर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए CM KCR ने 150 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले परिषद चेयरमैन विठल राव, आर्मर म्यूनिसिपल चेयरमैन पंडित विनीता पवन, साबिका चेयरमैन बबलू, आर्मर MPP नरसैया, नंदीपेट MPP संतोष, माकलूर MPP प्रभाकर, जिले परिषद CEO गोविंद, आर्मर शहर के BRS सदर पूजा नरेंद्र, किसान कायदीन राजू, मनीष, नरेंद्र, सुधाकर, रंजीत, चिन्ना रेड्डी, वासु, साईराम, देविंदर, विनोद के अलावा काउंसलर्स, महकमे इरिगेशन के अहदेदारान ने शिरकत की। గడిచిన 6 రోజుల నుంచి మేము విఠలరావు గారు మా నాయకులు అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు జోడెద్దులాగా ఒకవైపు ప్రజాప్రతినిధులు మరొక వైపు అధికారులు మేము తిరుగుతా ఉంటే మాకు ఎదురైన తారసపడ్డ ప్రతి ఒక్కరూ మళ్ళీ రావాలి కేసీఆర్, కావాలి కేసీఆర్, గెలవాలి కేసీఆర్, హ్యాట్రిక్ గా ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కావాలి, హ్యాట్రిక్ ఎమ్మెల్యే నన్ను కూడా కావాలని చెప్పి కోరుకుంటూ నాకు డైరెక్ట్ గా చెప్తా ఉన్నారు, భారీ మెజార్టీతో గెలిపిస్తామని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇంత గొప్పగా మరి ఇన్ని పథకాలు పనులు మేము చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆయన ఇక్కడే కాదు ఈ దేశంలో రైతులు బాగుపడాలంటే, ఈ దేశంలో వరల్డ్ లార్జెస్ట్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్ట్ కావాలంటే, ఈ దేశంలో 24 గంటల కరెంట్ కావాలంటే, పిల్లలకు మంచి విద్య కావాలంటే, చెరువులలో నీళ్లు ఉండాలంటే దేశానికి నాయకత్వం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వహించాలా, ఈ దేశ ప్రధానిగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఉండాలి। यौम तासीस तेलंगाना दाही तकारीब के पेश नज़र MLC के कविता व MLA शकील आमिर बरोज़ जुमेरात एड़पल्ली में शिरकत करने के मद्देनज़र ज़िले कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर गिरधावर गंगारेड्डी कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। यौम तासीस तेलंगाना अशरा तकारीब के पेश नज़र बरोज़ जुमेरात को एड़पल्ली में MLC कविता व MLA शकील आमिर ने शिरकत करने के पेश नज़र एड़पल्ली में इनेकात अमल में लाए गए इजलास में इंतजामात व मुकामी अराजी का जायजा लिया गया और कहा कि मंडल को के कविता आना काफ़ी खुश आइन बात है। तेलंगाना हुकूमत की तश्कील अमल में लाने के बाद मुनाकिदा तरक्याती कामों के ताल्लुक से रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से यौम तासीस तेलंगाना का शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एड़पल्ली MPP श्रीनिवास और नायब सरपंच अलोका श्रीनिवास सिंगल, विंडू सदर P मलकारेड्डी, पार्टी मंडल सदर श्रीराम, अब्दुल बारी व दिगर ने शिरकत की। తర్వాత తెలంగాణ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత కూడా నిజామాబాద్ జిల్లా ఎంపీగా ఎమ్మెల్సీగా ఈ జిల్లాలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో కానీ సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో కానీ
ఈరోజు బీడీ కార్మికులకు పెన్షన్ వస్తూ ఉన్నదంటే అదొక కవితక్క కృషి ఫలితం అని చెప్పి यौम ताज़ीज़ तेलंगाना दाही तकारीब के तहत शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में मुनाक़दा यौम आपाशी तकारीब में MLC के कविता व MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने की शिरकत। शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में यौम तासीस तेलंगाना तकारीब के तहत मुनाक़दा यौम आपाशी तकारीब में मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता व रूरल MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर MLC के कविता ने खिताब करते हुए कहा कि CM KCR को कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव नहीं बल्कि कालेश्वरम चंद्रशेखर राव कहने की ख्वाहिश की और KCR यानी शहर चेक डैम के अलावा रिजर्वायर है और हमारी रियासत तेलंगाना में होने वाले तरक्याती कामों वो कालेश्वरम के बारे में हर किसी को वाकिफ करवाने की वजह से दुनिया में सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट कालेश्वरम होने का इजहार किया और कहा कि मुसलसल जद्दोजहद करते हुए हासिल की गई तेलंगाना की 10 साल तकारीब को शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाने को काफ़ी खुशाइन करार दिया। కాలువలు, సి అంటే చెక్ డ్యామ్లు, ఆర్ అంటే రిజర్వాయర్లు, ఏసీఆర్ అంటేనే నీరు, కేసీఆర్ అంటేనే అమ్మ తీరు. ఎందుకోసం ఈ మాట చెప్తున్నా అంటే నేను వారి బిడ్డగా నేను ఆలోచన చేసిన చూసిన వారిని తెలంగాణ ఉద్యమం వచ్చినప్పుడు దుఃఖం ఒక్కొక్క జిల్లాకు పోయి వస్తే తుమ్ము రేగిపోయిన పొలాలని ఆయన బాధపడ్డ సందర్భం చూసిన. ఇప్పుడు కూడా చూస్తున్నా. నిన్న నాగర్ కర్నూలు పోయినటువంటి సందర్భంలో హెలికాప్టర్ దిగుతూ ఉంటే ఆయన సంతోషం చిన్నపిల్లగాడిలాగా. ఆనాడు పాలమూరు ఎండిపోయి దుబ్బబట్టిపోయి ఉండే ఇవాళ పాలమూరు తల్లి పచ్చ పైరు కప్పుకున్నదని పైట కప్పుకున్నదని రాసినటువంటి వక్త ఆయన కేసీఆర్ గారు. ఎందుకోసం అంటే ఒక ప్రేమతో ఒక ఆర్తితో. ఇక్కడ చాలామంది మొత్తం మా మహిళా ఉద్యోగులు ఉన్నారు, మీకు తెలుసు. మన బిడ్డలకు ఏదైనా సుస్థి చేస్తే, బిడ్డలకు ఏదైనా అవసరమైతే వాళ్ళు మంచిగా ఏదాకా వదిలిపెట్టాం. మనం మనసం జరగం కదలం మంచిగా ఏదాకా. అదే తండ్రి అయితే అప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చిపోతుంటాడు, చూసిపోతుంటాడు, బాగున్నాడు అనే జ్వరం వచ్చిందా పాపం వాళ్ళకి ప్రేమ ఉండదని కాదు, కానీ అమ్మ ప్రేమ అమ్మ తీరు వేరే రకం. తాగునీళ్ళు మన నిజామాబాద్ పట్టణానికి అవసరం ఉంది కాబట్టి నిజామాబాద్ జిల్లాలో అన్ని నియోజకవర్గాల కంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ జనాభా మన పట్టణంలో ఉంది కాబట్టి మనకు అవసరం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మరి ఆ కార్యాచరణ మనం చేసుకున్నాం. మరి మిగతా విషయాలు ఈనాటి ముఖ్య అతిథి కవితక్క గారు మాట్లాడతారు. మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరు కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరోసారి అందరికీ దశాబ్ది उत्सव शुभा। जिले बिहार सदर आलमर MLA जीवन रेड्डी ने मंडल के मुख्तलिफ देहात में मुनाक़दा गवर्नमेंट व प्राइवेट प्रोग्रामों में की शिरकत। जिले बिहार सदर आलमर MLA जीवन रेड्डी मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत का दौरा करते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुनाक़दा यौम आपाशी तकारीब में शिरकत की और हल्क़े सतह पर मुनाक़दा प्रोग्राम में मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले क़ायदीन जिले बिहार सदर आलमर PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और इस तरह से शहर में मुनाक़दा तरक्याती प्रोग्राम के अलावा मुख्तलिफ शादी तकारीब में शिरकत करते हुए नए जोड़े को मुबारकबाद पेश की। बात इन्होंने मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता के हमरा मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इस मौके पर इनके साथ निज़ामाबाद MLA बीगाला गणेश गुप्ता भी मौजूद थे और इसके अलावा अंकापुर देहात में शुरू किए जाने वाले सड़क तोसी कामों का जायजा लिया और रोड पर क़याम अमल में लाए गए सेंट्रल लाइटिंग से वाबस्ता कामों का मुआयना करते हुए जिम्मेदार अहदेदारान को मुख्तलिफ हिदायत जारी की। इस मौके पर इनके साथ मुकामी अवामी नुमाइंदे मौजूद थे और इसी तरह से आलमर शहर से ताल्लुक़ रखने वाले SC तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान BRS पार्टी को भरपूर ताइज़ फराहम करने का ऐलान किया। बातज़ा SC तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले मेम्बरान ने ज़िले बिहार सदर आलमर MLA जीवन रेड्डी की मौजूदगी में BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तब आलमर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया और इसके अलावा नंदीपेट मंडल के गौसंगी संगम से वाबस्ता अरकान ने भी तायद का ऐलान किया। बातज़ा इसके अरकान ने भी MLA जीवन रेड्डी की मौजूदगी में BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया गया। RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने इनके अपने रिहाइशगाह में अवामी नुमाइंदों को SDF प्रोसीडिंग दस्तावेजात के हवाले। TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन ने इनके अपने रिहाइशगाह में धरपली मंडल के मुकाम पर वाक़े मुदिराज कमेटी हॉल संगम के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाते हुए SDF प्रोसीडिंग दस्तावेजात को मुख्तलिफ बिरादरी तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान वो मुकामी अवामी नुमाइंदों को हवाले किया। बातज़ा रूरल MLA ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत में कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करते हुए बिलालिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ फलाह स्कीमात के तहत फैज़याब किया जा रहा है और मुख्तलिफ बिरादरी तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले
संगमों की तामीर के लिए SDA प्रोसीडिंग दस्तावेजात की फराहमी अमल में लाई जा रही है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। काश्तकारी के लिए दिक्कत ना होने के लिए CM KCR प्रोजेक्ट की तामीर अमल में लाने का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। मुब्काल मंडल के SRSP रिवर्स पंपिंग 0 पॉइंट पंप हाउस के पास यौम तासीस तेलंगाना दाही तकारीब के तहत मुनाकिद होने वाले यौम आपाशी के जरिए हासिल की गई कामयाबियों के ताल्लुक से जल्द से आम का क़याम अमल में लाए जाने वाले प्रोग्राम में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के साथ BRS क़ायदीन व कारकुनान के अलावा ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए प्रोग्राम को कामयाब बनाया। इस मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने पैकेज 21 कॉलेस्ट्रॉम प्रोजेक्ट स्कीम के फ़वाइद के अलावा आपाशी प्रोजेक्ट के जरिए तेलंगाना के बालकोंडा हल्के में होने वाले तरक्याती कामों को वीडियो के तहत शिरकत करने वाले अवाम को वजाहत की। శ్రీరామ్ సాగర్ నుంచి ఇలా మోటార్లు పెట్టినాం, పెద్ద పెద్ద మోటార్లు అవి పెట్టినాక ఇప్పుడు ఇట్లా మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇదే మనం అంటే దాదాపు కదా మోటార్ రాజేశ్వరరావు పీఠ వరద 1 2 3 4 8 మోటార్లు ప్రతి పంప్ హౌస్లో ఆడికి అంతే కనిపిస్తాయి. పోయేటప్పుడు చూడు కాదు సామర్థ్యం 6.5 మెగావాట్లు కాగా ఒక్క పంప్ హౌస్లో 8 మోటార్ల సామర్థ్యం కలిపి 52 మెగావాట్లు వస్తుంది. అలా మీరు ఎత్తు మీద ఉన్నారు, మీకు నీళ్ళు రావు అని చెప్పి ఆందోళనలు. అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నాడు, ఒకసారి మా తెలంగాణ మాకు ఇచ్చి చూడండి, కాళ్ళు అడ్డం పెట్టైనా సరే తెలంగాణ బీడు భూముల్లోకి నీళ్లు మలుపుతా అని చెప్పిండు ఆ రోజు. ఇవాళ అదే విధంగా గోదావరి నదిలో నీళ్లు పారుతూ ఉంటే, ఇవాళ ఉదాల సముద్రంలో పోతా ఉంటే आर्मी मंडल के अंकापुर देहात में वाक़ MLA जीवन रेड्डी की रिहाइशगाह में मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान ने BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आर्मी मंडल के अंकापुर देहात में वाक़ MLA जीवन रेड्डी की रिहाइशगाह में आर्मी शहर से ताल्लुक़ रखने वाले SC तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान व गौरसंगी मेम्बरान के अलावा नंदीपेट मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले गौरसंगी मेम्बरान, नंदीपेट मंडल तलवेदा देहात से वाबस्ता 500 से ज़ायद नौजवान व मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मेम्बरान ने MLA जीवन रेड्डी की मौजूदगी में BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिसके तहत MLA जीवन रेड्डी ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया। बातज़ा इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ रूब अमल में लाते हुए बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब करने का सहरा CM KCR के सर जाने का इजहार किया। నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఇవాళ బీజేపీ పార్టీలో 9 గ్రూపులు ఉన్నాయి. ఒక ఆర్మూర్లో 9 మంది ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులు అని చెప్పుకొని తిరుగుతూ ఉన్నావు. నువ్వు వాడంటావు, వీడంటావు. నీకు దమ్ముంటే నేను మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా, నువ్వు నా మీదనే రా యుద్ధానికి, నేనే నీ మీద కంటెస్ట్ చేస్తా అంటున్నా, నువ్వే నా మీద కంటెస్ట్ చేయి. నీకు దమ్ముంటే ప్రకటించకుండా అభ్యర్థి ఎవరో చెప్పకుండా దొంగలాగా తిరుక్కుంటా పసుపు బోర్డు తేకుండా అడ్డమైన మాటలు మాట్లాడుకుంటూ తిరుగుతూ ఉన్నావు. ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకో. ఉరికిచ్చి నిన్ను ఆర్ము నుంచి ఉరికిచ్చి డిపాజిట్ తప్పకుండా నీ రాజకీయ జీవితం క్లోజ్ చేసి పంపిస్తాం. ఇక్కడ నుంచి ఆర్ము నుంచే నీ క్లోజ్ అవుతాయని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. మేమేమంటున్నాం, నేను ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిని ప్రకటించిన. बिचकुंदा 108 एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की अदम फ्राहमी, टेक्निकी खराबी से एम्बुलेंस सरकारी हॉस्पिटल की जीनत। कामारेड्डी जिले के बिचकुंदा मंडल मुस्तखर पर 108 एम्बुलेंस टेक्निकी खराबी की वजह से सरकारी हॉस्पिटल की जीनत बनी हुई है। एम्बुलेंस में कुछ दिनों से ऑक्सीजन अदम फ्राहमी, जिसकी वजह से बिचकुंदा मंडल के मरीजों को शदीद मुश्किलात दरपेश हो रही हैं। मरीजों को इमरजेंसी हालात में बांसवाड़ा निज़ामाबाद मुंतकिल खान की एम्बुलेंस से किया जा रहा है। महकमे सेहत के अहदेदारों की तसावुली से बिचकुंदा एम्बुलेंस अवाम के लिए जहमत बनी हुई है, जो तेलंगाना हुकूमत की लापरवाही का नतीजा है। तेलंगाना हुकूमत सरकारी हॉस्पिटल्स में मरीजों के इलाज को बेहतर बनाने के लिए लाख रुपए खर्च करती है, लेकिन एम्बुलेंस की दुरुस्तगी क्यों नहीं की जाती। एम्बुलेंस की खराबी से गरीब अवाम पर ज़ायद माली बोझ पड़ रहा है। महकमे सेहत के अहदेदार एम्बुलेंस की टेक्निकी खराबी दुरुस्त करते हुए ऑक्सीजन की सहूलत फराहम करें। प्रोजेक्ट की तामीर में नुमाया तौर पर इजाफा हुआ है। वर्नी मंडल सिद्धापुर यौम आपाशी तकरीब से कानून साज असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। जिले निज़ामाबाद वर्नी मंडल सिद्धापुर रिजर्वायर के पास क़ियाम अमल में लाए गए
یوم آپاشی تقاریب میں بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچورام سرینواس ریڈی نے شرکت کی۔ اس موقع پر تلنگانہ قانون ساز اسمبلی اسپیکر پوچورام سرینواس ریڈی نے کہا کہ کالاشرم پروجیکٹ کے تحت 15 ضلع 50 حلقوں میں شمالی تلنگانہ میں کاشت کے لیے پانی فراہمی پروجیکٹ کالاشرم پروجیکٹ کو ریاست میں واقع تالابوں کو بحال کرنے والے ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کے قیادت میں قیام عمل میں لایا گیا۔ اسمبلی اسپیکر نے کہا کہ ریاست کے کانگریس BJP پارٹی سے وابستہ قائدین CM KCR کی کرسی کے لیے ہاتھا پائی تک کرنے کے لیے مدمقابل کھڑے ہونے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں BRS پارٹی کے قائدین، کارکنان، عوامی نمائندے و مختلف محکمے جہاں سے تعلق رکھنے والے عہدیداران و دیگر نے شرکت کی۔ డైరెక్ట్ చెరువు కట్ట మీద మీటింగ్ పెట్టుకున్నటువంటి మన కాన్స్టిట్యున్సీ ఒకటి ఎందుకంటే ఇందులో ఫారెస్ట్ భూమి మురుగుతున్నది, అడవి భూమి మురుగుతుంది, ఇలా పట్టదారుల భూమితో పాటు అడవి భూమి మురుగుతుంది। నిజామాబాద్ DFO గారి యొక్క పరిధిలోనే ఎక్కువ భూమి మురుగుతుంది। ఇంతకుముందు ఇద్దరు మన నిజామాబాద్ కలెక్టర్ గారిని DFO గారు ఇద్దరితో పిలుచుకొని తిరిగి చూసాం। వారు కూడా భూములు మునుపు గురుముల ప్రతిపాదనలు తయారు చేసి హైదరాబాద్ పంపించారు, అక్కడ ఢిల్లీకి పోతాయి। మన చెరువులో నీళ్ళు ఆగే లోపల ఆ ఢిల్లీకి అనుమతి తెచ్చుకోవాలి। ఆ పని అది చేస్తూ ఉన్నాం। ఒక పక్క చెరువు కట్ట మట్టి వస్తూనే DFO గారు రికమెండ్ చేసినటువంటి ప్రతిపాదనను హైదరాబాద్ తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ హైదరాబాద్ నుంచి జోనల్ ఆఫీస్ తీసుకెళ్ళి జోనల్ ఆఫీస్ నుంచి మళ్ళీ ఢిల్లీ తీసుకెళ్ళి దీని అనుమతి తీసుకురావాలి। ریاست تلنگانہ حکومت کی جانب سے تعمیر کردہ ڈبل بیڈروم مکانات ریاست میں مینوشی کرنے والوں کے لیے بار میں تبدیل ہونے کا سابقہ وزیر شبیر علی نے کیا اظہار۔ ضلع کامریڈی کے احاطے میں واقع ٹیکریال مضافاتی علاقے میں ایک تعمیر کردہ ڈبل بیڈروم مکانات کا سابقہ وزیر شبیر علی نے جائزہ لیتے ہوئے مکانات کی خستہ حالت پر تشویش کا اظہار کیا۔ بعد ازاں قیام عمل میں لائے گئے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع کامریڈی و نظام آباد میں 9 ایکڑ پر مکانات کی تعمیر عمل میں لائی گئی تھی، لیکن اب KCR 14 ایکڑ پر مکانات کی تعمیر عمل میں لانے کا الزام عائد کیا۔ اس پروگرام میں کانگریس پارٹی کے قائدین، کارکنان، عوامی نمائندے و دیگر موجود تھے۔ آرمور منڈل کے انکاپور دیہات میں جاری سڑک توسیع سے وابستہ کاموں کا MLA جیون ریڈی نے مقامی عوامی نمائندوں کے ہمراہ لیا جائزہ۔ آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین و ضلعی BRS صدر جیون ریڈی نے مقامی عوامی نمائندوں کے ہمراہ آرمور حلقے کے انکاپور دیہات میں جاری سڑک توسیع سے وابستہ کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے ذمہ دار عہدیداران سے تمام تفصیلات حاصل کی، کاموں کو تیز رفتار کے ساتھ مکمل کرنے کی تجویز دی۔ بعد ازاں انہوں نے کہا کہ KCR حکومت کے دور اقتدار میں کسی بھی ریاست میں روب عمل میں نہ لائے جانے والے فلاحی اسکیمات کو کامیابی کے ساتھ روب عمل میں لاتے ہوئے کئی ترقیاتی کاموں کو پائے تکمیل پر پہنچایا گیا ہے، جس سے دیگر ریاستوں میں مقیم عوام تلنگانہ کی اسکیمات کو ان کے اپنے ریاستوں میں نافذ کرنے کی خواہش کرنے کا اظہار کیا۔ یوم تاسیس تلنگانہ اشرا تقاریب کے تحت آرمور کے گنڈالہ تالاب کے پاس منعقدہ یوم آپاشی پروگرام میں ضلع BRS صدر آرمور MLA جیون ریڈی و ZP چیئرمین D وٹھل راؤ نے کی شرکت۔ یوم تاسیس تلنگانہ دہائی تقاریب کے تحت آرمور کے گنڈالہ تالاب کے پاس منعقدہ یوم آپاشی پروگرام میں آرمور حلقہ اسمبلی و ضلع BRS صدر جیون ریڈی کے ساتھ ZP چیئرمین وٹھل راؤ نے شرکت کی۔ اس پروگرام میں آرمور میونسپل چیئرپرسن پنڈت ونیتا پون، ZP CEO گووند حلقے کے MPPs، MPTCs، منڈل سے متعلقہ موضوعات سے تعلق رکھنے والے BRS قائدین و محکمہ اریگیشن سے تعلق رکھنے والے عہدیداران نے شرکت کی۔ D اروند پہلے اپنی ٹکٹ کی فکر کرے اور ایک بار جو کسانوں کو دھوکہ دے کر جیتے ہوئے کیا دوسری بار جیت سکو گے؟ MLC کے کویتا کو چیلنج کرنے سے قبل سوچ لے۔ سابقہ ریڈکو چیئرمین اس سے علیم کا MP D اروند کو چیلنج۔ అది అరవింద్ మాట్లాడుతున్నాడు, ఎంత చిల్లర మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు, మా మేడం కవిత మేడం మీద చెప్తున్నాడు మీరు ఎమ్మెల్యే పోట్లాడతావా ఎంపీకి పోట్లాడతావా? అరే పాగల్ అయిపోయినావా? ఆయన సొంత పార్టీ ఉన్నది, ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఆయన దగ్గర ఉన్నది, ఎంపీ టికెట్ ఆయన దగ్గర ఉన్నది, అసలు నీ దగ్గర టికెట్ ఆడ ఉన్నది, నీకు ఎంపీ టికెట్ దొరుకుతుంది, నీకు ఎంపీ టికెట్ దొరుకుతుంది, నువ్వు చూసుకోరా భయ్। అరే నీ దగ్గర దమ్ముంటే ఇది నిజామాబాద్ ఉన్నది కదా, ఇందూరు ఉన్నది కదా, నువ్వు వచ్చి ఇక్కడ కొట్లాడు కదా। నీ నాయన 4 టైంలు ఓడిపోయినాడు నిజామాబాద్ నుంచి, నీ నాయన సంగతి చెప్పాను, నువ్వు మా కవిత మేడం సంగతి చెప్పావా? యుద్ధం ఉంటే నేను ఇప్పుడు ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా, ఇక్కడ నుంచి నువ్వు నిజామాబాద్ నుంచి ఎమ్మెల్యే కొట్లాడి చూపి నీ దగ్గర దమ్ముంటే ఇట్లా చూసుకోలేదు నీ నాయన। اختتام سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کے سرخیوں پر۔
तलबिया की गूंज के साथ रियासत से आज़मीन हज की रवानगी के सिलसिले का हुआ आगाज। हैदराबाद में हज कमेटी चेयरमैन, रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी व वजीर दाखिला महमूद अली व दीगर ने दिखाई हरी झंडी। प्रोजेक्ट की तामीर के सबब रियासत में आपाशी के मसाइल हल करने वाले सिर्फ केसीआर। वनी मंडल में तेलंगाना यौम तासीस के जश्न के हिस्से के तौर पर मुनाक़िदा यौम आपाशी तक़रीब से रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी। MP अरविंद को दम है तो इस बार इंतखाबात में इनकी बिल मुकाबिल इंतखाबात में हिस्सा ले। PUC कमेटी चेयरमैन व आर्मर MLA जीवन रेड्डी, इनकी क़यादत में 500 से ज्यादा अफराद ने की BRS में शमूलियत हासिल। निज़ामाबाद से आज़मीन हज के पहले काफिले की हुई आज हैदराबाद के लिए रवानगी। खुसूसी दुआओं के साथ किया गया सफर का आगाज। जमात इस्लामी निज़ामाबाद की जानिब से ज़ेरे तामीर अल-शिफा हॉस्पिटल का मुत्तहदा ज़िला MLC के कविता व MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने किया दौरा। वो फंड्स की फ्राहमी व हॉस्पिटल के लिए आलात की फ्राहमी का दिया तयक़ुन। आज के लिए फिलहाल इतना है। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।